Do you think there is adequate representation of women in our governance? No. No. Why can't you be a homemaker and also a nation maker? कि लड़कियों अपनी आंखें खुली रखो. Confidence. मर्जिया शानू पठान. Lovely. I love that. I heard people commenting कि अरे लड़की से लड़की क्यों कर रही है, तो दैट इज़ जेंडर बायसनेस. शानू अपनी बेटी से ट्रैफिक करवा रहा है. अभी लड़कियां ट्रैफिक मैनेज करेंगी. अभी तक बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड भी नहीं है. रियली दे डोंट हैव आधार कार्ड. पूरी जो एक स्ट्रैटेजी मुझे ऐसा लगता है बनाई गई थी टू डिफेम कश्मीर, वो फेल हो गई. जो जितने टूरिस्ट थे वहाँ पे, द वे दे स्टूड फॉर कश्मीर, बिकॉज वो लोग ने विटनेस किया ना, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड. यू मेक मिस्टेक्स, यू लर्न फ्रॉम इट, गेट अप, फिनिश. इंडिया मीन्स हम इंसानियत पे मानने वाले लोग हैं. एक दूसरे को धर्म, जात, कास्ट पे, जेंडर पे हेल्प करने वाले लोग नहीं हैं. दिल से दिल का रिश्ता है. Absolutely. सो ये हमारे देश की खासियत है. वी स्टैंड फॉर ईच अदर एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज. Do you think spirituality is important? Extremely. I'll go mad, crazy. Never ever choose disrespect. Love. Welcome back to the Wit Chat Show, where we stir up bold conversations with changemakers, disruptors, and voices that matter. Today's guest is someone who's lighting up Maharashtra's youth and civic space with her fierce activism and purpose driven leadership. From starting MSP Care Foundation to advocating for students' rights, she is proving that young voices can shape powerful narratives. Let's dive into this unfiltered conversation with Marzia Shanu Patan. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you for inviting. I'm really excited and looking forward to having an amazing chat with you. I am excited too because I am with a female host. So that's rare. But I'm very happy to be here. Thank you. Thank you so much. Likewise. MSP Care Foundation. We all know, we have all seen a lot of work about MSP Care Foundation on social media. How did that initiate? What was the thought behind it? So MSP Care Foundation is not the beginning. MSP Care Foundation is now. Okay. You know, since 3 or 4 years. But the beginning was उससे भी बहुत पहले. So like everyone knows कि I did my first protest when I was like 12 years old for Malala Yousafzai. उस टाइम पे we did our first protest. फिर उसके बाद education and everything happened. Attempted UPSC, came back in COVID, then started working. काम चालू किया इस फील्ड में बिकॉज वालिद ऑलरेडी एक वेरी वेल नोन और बहुत मेहनती लीडर उस है ही. तो कोविड था, सो आई स्टार्टेड वर्किंग टू हेल्प हिम एक्चुअली. बट देन पता ही नहीं चला कि मेरी खुद की दुनिया, मेरी ज़िंदगी कब ये बन गई. एंड आई एम लविंग इट बिकॉज आई हैव ट्राइड मैनी थिंग्स. यू नो, आई ट्राइड टू बी अ businesswoman. I've tried to do UPSC like I said, but I was not able to be consistent in any of these work. Okay. Never at peace. The only thing I feel I am consistent in is this work. Every day I can be consistently going, cleaning, Till meeting 3 a.m. in the people, 3:30 a.m. in the night. So yeah, there are some days, some nights where you have to be on roads by 3:34. Ramzan was that phase. Even but then yesterday again, till 3:30, I think you were there for cleaning purposes. yeah. So this before Ramzan, no, prior to monsoon, we have this Nala Safai thing okay. that we have to do because Mumra mein like 60 to 70 combination of big and small nalas are there. So big and small chambers. So वो बहुत सारे covered है, बहुत सारे uncovered है, तो उसकी वजह से पूरा पानी भर जाता है. Yeah, so रात में ही that is possible because सुबह में there is so much of traffic and so many people on the road, so it's not possible in daytime. Correct. Your father, आपके वालिद साहब, again, he has been a leader. While growing up, I'm sure you must have seen a lot of things, you know, बचपन से ही आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, बहुत सारे experiences बचपन से हुए होंगे. How did that shape you up in your growing years? I'll tell you, I'll be very honest. When in my teenage years, I used to go to this school in New Horizon in Panvel.
मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अब्बू जी रास्ते पे बैठ के आंदोलन करते हैं, मुझे भी करा रहे, यू नो, ही इज़ आस्किंग मी ऑल्सो टू डू इट. सम इशूज़ वर यू नो वेरी नाइस, जिसपे मुझे करने को मन होता था, लाइक मलाला यूसुफज़ई, बच्ची को, एक लड़की को पढ़ना है एंड शी वाज शॉट इन हर हेड. सो बट देन सम इश्यूज़ पे, जैसे लाइक टेररिस्ट अटैक्स पे भी मुझे मज़ा आता था आंदोलन करने के लिए, सो करती थी मैं. बट देन ऐसा लगता था कि यार व्हाट इज़ दिस लाइफ, यू डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ, डैड डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ, यू नो, वो हमको टाइम नहीं देते. एक बार ही उन्होंने मुझे 11th स्टैंडर्ड में, आई वॉज इन सिंघानिया स्कूल, मेरे मतलब लाइक डिपार्चर का टाइम हुआ था, छूट गई थी स्कूल, ही केप्ट मी वेटिंग, ही फॉरगॉट that I was there and he went to this आंदोलन जहाँ पे बच्चों के साथ आंदोलन के लिए, and I was standing at the gate of Singhania waiting for my dad to come and pick me up. He was not there. वो भूल गए कि मैं मेरा 1:30 बजे स्कूल छूटता है एंड देन उनको मुझे लेने आना है, एंड आई वाज देयर टिल 2:30 एंड देन उनको याद है एंड देन उन्होंने किसी और को भेजा मुझे लेने के लिए. सो बिकॉज द स्कूल इज इन थाने. करेक्ट. सो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि अब्बू जी, यू नो, दिस इज सो अनफेयर, हमको वक्त नहीं देते हैं दूसरे लोगों के लिए, ही इज़ देयर, मतलब काम करते हैं फॉर अदर पीपल, ही इज़ देयर. बट देन नाउ आई अंडरस्टैंड एंड देन नाउ आई नो दैट कितना वो करना उनकी जिम्मेदारी थी और उतनी आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यूज्ड टू डू इट वाइल ग्रोइंग अप. थोड़ा थोड़ा जब मैं उम्र में आई, 21 साल 22 साल, तब मुझे ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें एक्साइट करने लगी. ये सारी चीज़ें मुझे देखकर प्राउड ऑटोमेटिकली फील होने लगा, मोस्टली आफ्टर कोविड. You know, when the whole world is inside their homes, scared, he used to go out and work for people. So I was like, कुछ तो बात है ये काम में, करना चाहिए. पावर है इसमें. पावर है. अगेन कमिंग बैक टू MSP केयर फाउंडेशन, हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं अबाउट द एक्टिविटीज़ दैट MSP डज. हेल्थ केयर में भी आई एम श्योर यू गाइज आर वर्किंग. कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे अभी फ़िलहाल काम चल रहा है और क्या लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है उससे? वैसे तो हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. हम लोग थ्रू MSP केयर फाउंडेशन अभी तक मोर देन 3000 लोगों के मोतियाबिंद कैटरैक्ट ऑपरेशंस अभी तक करा चुके हैं, एंड दे आर नॉट जस्ट फ्रॉम मुमरा. द पीपल, ऑल द ओल्ड पीपल, दे आर नॉट जस्ट फ्रॉम मुमरा. वो लोग मुमरा के बाहर से भी आते हैं. अभी हाल ही में हमारा कैंप हुआ है मोतियाबिंद का, उसमें रत्नागिरी एंड जलगांव से भी पेशेंट्स आए थे. बिकॉज मैंने एक अवेयरनेस वीडियो डाला था कि हमारा इतनी तारीख को कैंप होने वाला है एंड आप लोग आइए उसके अंदर. तो रत्नागिरी से और जलगांव से भी पेशेंट्स आए थे, उनका ऑपरेशन हुआ है एंड दे आर सेफली बैक टू देयर होम टाउन. सो ये एक चीज़ हो गई. देन वी वर्क इन डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो, बिकॉज यू नो डॉक्यूमेंटेशन की क्या कमी है हमारे, स्पेशली मुमरा कौसा में अगर हम देखें तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना ज़रूरी है. बिकॉज अभी देर आर सो रेयर केसेस जो कि बोलने के लिए भी मुझे शॉकिंग लगता है कि अभी तक बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड भी नहीं है. रियली दे डोंट हैव आधार कार्ड. इट्स शॉकिंग नहीं है उनके पास आधार कार्ड. सो हम आधार कार्ड कैंप्स, वी वर्क इन आधार कार्ड, मतलब डॉक्यूमेंटेशंस ऑल्सो. देन वी वर्क इन RT ऑल्सो, राइट टू एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो. सो देर आर अदर इंस्टीट्यूट, आई एम श्योर दे ऑल्सो वर्क इन RT, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट MSP केयर फाउंडेशन, वट एवर सर्विसेज वी गिव टू पीपल, we give it in free. We don't charge anything. Like if we are, you know, helping you with RTE forms and all the documentations, MSP Care Foundation and the people who work for MSP Care Foundation, they will not ask for a single penny. Nothing. You can just come here and we will guide you for the documentation. We will help you with the documentation. आपका फॉर्म भरने से लेकर के आपका बच्चा थ्रू RTE, यू नो, लाइक राइट टू एजुकेशन के ज़रिए हम बच्चों को 1st से 8th स्टैंडर्ड तक या 10th स्टैंडर्ड तक उनको फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. सो आपके बच्चे का फॉर्म भरने से लेकर के आपका बच्चा स्कूल में जा सके और स्कूल उसको हरास ना करे बिकॉज वो एक RTE का स्टूडेंट है, वहाँ तक की पूरी जिम्मेदारी MSP केयर फाउंडेशन की होती है, विदाउट एनी पेनी. सो दैट इज़ द डिफरेंस. अदर people also, institute also, they also fill forms, but they charge, I think. Okay. Maybe 100 rupees a form, 200 rupees a form, maybe because उनका भी एक प्रोसेस होता होगा, लेस फंडिंग एंड सारी चीज़ें. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमारा डिफरेंस क्या है बाकी इंस्टीट्यूट से. जितना आप यंगस्टर्स के साथ डील करती है, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ, what is still there which is missing, you know, that this segment needs hearing?
स्टूडेंट्स के पास अभी भी ये सारी चीज़ों की कमी है? नॉट जस्ट स्टूडेंट, आई फील द सेगमेंट जिसकी वॉइस और ओपिनियन को सुनना ज़रूरी है, दैट्स विमेन फॉर श्योर, विमेन फॉर श्योर। एंड देन फिर उसके बाद स्टूडेंट्स तो है ही, बट विमेन आई फील स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन दैट सेगमेंट अ लॉट, विमेन। एंड ऑल्सो बिकॉज आई बिलीव माई फोकसेस आर ऑन 3 एस्पेक्ट्स। ओल्ड पीपल, बिकॉज उनकी भी वॉइस एक टाइम के बाद सुनाई नहीं Unheard देती, हो उनके घर को ही नहीं सुनाई देती, यू नो, बिकॉज इसीलिए ये कैटरैक्ट क्यों रखा है, बिकॉज उनके ही घर को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। सो डेफिनेटली दैट एस्पेक्ट, देन विमेन एंड चाइल्ड, ये 3 एस्पेक्ट पे मुझे काम करना है फॉर श्योर। है कुछ ऐसा जो स्टूडेंट्स के लिए अभी भी मिसिंग है फ्रॉम द मे बी फॉर इन गवर्नमेंट स्कूल्स दैट दिस एरिया? Quality is missing. We are working on quantities. True. We lack in quality. Quality education missing है. When we talk about quality education, simply आप government schools अगर हम देखें, so we know the condition of government schools. Mumra also जो government schools है, the conditions are not that great. I will accept it here. So और of course उसके लिए महापालिका जिम्मेदार है, पालिका को उस पर काम करना है, पर स्टेट को भी उस पर, और सेंटर से भी जब ऊपर से ये चीज़ पुट होगी तो वो नीचे तक के आएगी, बट ऊपर से इस चीज़ पे ज़ोर आना ज़रूरी है। मैं हमेशा हमारे सारे प्रोटेस्ट में, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, ऑलवेज से दैट वी हैव बेटर थिंग्स टू वर्क ऑन लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, बट रैदर वी आर जस्ट मेकिंग न्यूज़ ऑन सम हेट स्टफ। ग्राउंड लेवल पे जब आप काम करते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। कैन यू जस्ट टेक अस थ्रू अ फ्यू चैलेंजेस, यू नो, कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी काफ़ी बार मुश्किल आ जाती है? देखिए, इन द बिगिनिंग इट वाज वेरी टफ, इवन इफ माय डैड you know had his whole team and everything, but he used to not come with me. He left me all alone to, you know, उनका ऐसा बोलना था, अपना ग्राउंड भापो, नापो, see how it is, you should yourself work on it. तो टीम रहती थी सपोर्ट के लिए, they used to help me, but सडन चेंज, यू नो, 10 साल से मेरे वालिद कॉरपोरेटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की, उनको आदत हो गई थी शानू भाई की लोगों को, एंड विमेन का पार्टिसिपेशन बिकॉज लेस था, बिकॉज कॉरपोरेटर एक मेल थे, तो महिलाएं नहीं उतरती थी जल्दी उनसे कुछ मतलब मसले शेयर करने के लिए। करेक्ट। जो भी प्रॉब्लम्स है एरिया में वो बताने के लिए नहीं उतरती थी। मुझे 5-5 घंटा खड़ा रहना पड़ता था, वेट करना पड़ता था कि दे विल कम डाउन, दे विल टॉक टू मी, दे विल एक्सेप्ट, बिकॉज कोविड का भी टाइम था उस टाइम में मैंने इनिशियली स्टार्टेड, बट देन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ तो इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो इनिशियली मसले आते ही है, बट देन इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, आई एम श्योर आप कंसिस्टेंटली अगर अपने एफर्ट्स दे रहे हैं तो पीपल विल एक्सेप्ट यू, पीपल विल लव यू। ट्रू ट्रू। डू यू थिंक देयर इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन आवर गवर्नेंस? नो। हम जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, एनसीपी एसपी, हमारे जो लीडर हैं शरद चंद्र पवार सर, उन्होंने रिजर्वेशन पे काम, महिला रिजर्वेशन पे, ओके, मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ से, मगर हम अगर देखें तो महिला का इतना रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरा यही बोलना है कि अगर इफ़ वी टॉक अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी, लाइक फॉर नाउ आई विल टेल ऑल द पीपल कि हमें अगर हमारा देश रिजर्वेशन दे रहा है तो हमको तो हमारे देश के कानून मानना हमारे इस्लाम में भी है। आप अपने दायरे में, आप अपने डिग्निटी में रह करके यू कैन डू एनीथिंग, एनी वर्क यू कैन डू, बीइंग इन योर डिग्निटी, बीइंग connected to your roots, you can do any work. Why can't you be a homemaker and also a nation maker? You can be. So ये चीज़ जब घर से support आएगा तो I'm sure nothing can stop women these days. Nothing can stop them. Do you think there are barriers in the system itself? True. There are. Because देखिए ये एक पूरा साइकिल हो गया। हम बाहर निकलते नहीं हैं तो उनको भी आदत हो गई है कि एक्सेप्ट ना करने की। यू नो, हम इतना आउट लाउड अपना हक, हम अगर अपने राइट्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर किसी और को तो उसको खा जाने की आदत हो जाएगी ना। सो यू हैव टू प्रैक्टिस योर राइट्स। आपकी ये राइट्स है, आपको रिजर्वेशन दिया गया है
आपका राइट है, आप आ सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो, आप पॉलिटिक्स में आ सकते हो, आप हर माशरे में काम कर सकते हो. अगर आप अपना हक छोड़ देंगे तो दूसरे तो उस पर कब्जा करके बैठेंगे एंड देन दे विल नॉट लीव इट वेरी ईजीली. फिर आप अब जब अपना हक लेने आएंगे तो दे विल नॉट ट्रीट यू वेल. नो, ऑफ कोर्स दैट्स हाउ इट हैपन्स. तो अभी सिस्टम में उसकी वजह से, बिकॉज बहुत सालों से ये चलता आया है एंड अब इस पे चेंज हो रहा है. अ लॉट ऑफ वेमेन नाउ गेटिंग इनटू इट, गेटिंग इन द गेम ऑफ वर्किंग. चाहे आप कमर्शियली देखें या पॉलिटिक्स में देखें या सोशल वर्क में देखें, किसी भी वे में देखें, सो वीमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग. इट विल टेक टाइम बट इंशाल्लाह इवेंचुअली change will happen. Inshallah. What is missing when we talk about grassroots work? जो institutions है, governing bodies है, लोगों को usually complaints होती है कि this is missing, that is missing. Ground root level पे, grass root level पे, what is the governance missing जहाँ पे institutions को, NGOs को, foundations को आकर काम करना पड़ रहा है? अभी 3.5 साल से इलेक्शन ही नहीं हुआ है, सो यू नो व्हाट्स मिसिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट BMC, हम बॉम्बे की बात करें, TMC की बात करें, NMMC की बात करें, मैं तो करीब के इस सारी चीज़ों की बात करूँगी. आप बताइए, पहले की तरह अब गवर्नेंस पहले की तरह नहीं होता. यू नो, पहले कैसा होता था, फेयर इलेक्शंस होते थे, फेयर चीज़ें होती थी. 6 महीने से ज़्यादा आप लोकल बॉडीज़ अगर डिसमिस हो चुकी तो होल्ड नहीं कर सकते हो. आपको 6 महीने के बाद लोकल बॉडी फ्रेम करनी ही पड़ती थी रिटर्न. तो ये एक साइकिल है. अगर आप ये साइकिल को तोड़ोगे तो ये NGOs और ये दूसरे लोगों को आके काम करना ही पड़ेगा. बिकॉज शहर देन लीडरलेस है ना. मतलब शहर के ऊपर कोई बराबर से ध्यान देने के लिए नहीं है. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि वी आर देयर, बट वो काम तो नहीं कर रही है ना. सो वी कांट लीव आवर सिटी लाइक दैट, नो. इसलिए वी हैव टू जंप इन एंड वर्क. Correct. So recently, while I was just going through the kind of activities that MSP does, one of the things which was done, and I think you guys do it every year, is talking about the Constitution and creating awareness about it. How was the response about it? Because I deal with a lot of students, and I can tell you that hardly students must be aware of what is exactly there in the Constitution. So how's your experience on that? मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द नीड ऑफ एन आवर. True. आप कोई भी धर्म में बिलोंग करो, कोई भी कम्युनिटी को बिलोंग करो. मैं कभी ये नहीं बोलती कि माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है. नहीं, एज एन इंडियन आपको बाय हार्ट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? ताकि आपका राइट कोई आपसे छीन ना सके और आप भी किसी पे जुल्म ना करो. बोथ द साइड्स. इफ़ यू विल नो द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल बी स्कैर्ड टू कमिट एनी क्राइम या किसी के राइट्स के साथ खिलवाड़ करने के लिए आप डरेंगे. एंड इफ़ यू नो कॉन्स्टिट्यूशन यू विल नो कि इफ़ समवन हैज़ मिसट्रीटेड मी, आई हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव माई राइट्स टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट इट. सो इट वर्क्स बोथ द वेज. दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वी डू नॉट नो इट. हमको उसके बारे में नहीं पता. जब आप एक बेसिक सा सवाल आप बच्चों से डील करती हैं, आप एक बेसिक सा सवाल उनको पूछिए कि वाई डू वी सेलिब्रेट 26 जैन, आई मीन रिपब्लिक डे, एंड वाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. दे वुडेंट नो द डिफरेंस, एंड दे वुडेंट इवन नो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज फ्रेम्ड एंड हाउ लॉन्ग इट टुक एंड हु फ्रेम्ड इट एंड हु ऑल वर सिटिंग एंड ऑल दैट. तो वो सब बेसिक चीज़ें ऑल्सो we lack. That is why we are where we are. विमेन की जब हम बात कर रहे थे तो हम अगर थाने की बात करते, बिकॉज यू एक्टिवली वर्क देयर, कौन से ऐसे मेजर्स जो विमेन सेफ्टी के लिए, इफ यू फील दैट अगर हमने ये चीज़ें बेसिक चीज़ें सॉर्ट कर ली तो विमेन सेफ्टी का इशू हमारे एरिया में रहेगा ही नहीं. I'll tell you, if I'm talking about women's safety, I will not talk about Thane and Bombay. I will talk pan India, because हम पूरे देश में औरतों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थाने और मुंबई फिर भी बहुत सेफ है. एब्सोल्युटली. थाने और मुंबई बहुत सेफ है. सिटीज़ बहुत ज़्यादातर सेफ है. देखो, क्राइम तो हर जगह होता है. कहीं क्राइम रेट कम है, कहीं ज़्यादा है. अगर आप बॉम्बे थाने की बात करें तो क्राइम रेट काफ़ी हद तक कम है. बट देयर आर पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, गाँव है, जहाँ का हमको आइडिया भी नहीं है कि हाउ वीमेन आर बीइंग ट्रीटेड या वहाँ के हाल क्या. लाइक आई वेंट टू संबल फ्यू मंथ्स बैक. मैं कुछ और मसले से गई थी वहाँ पर, जो वो मस्जिद एंड जो लोग शहीद हुए थे और वो सारी चीज़ें, वहाँ का हाल माहौल कैसा था, हाउ विमेन वर स्कैर्ड देयर. एंड व्हेन
when you talk about women and their safety, we cannot just talk about कि उनको रेप से कैसे बचाए, right? We can talk about we need to उनको हमको गार्ड करना है फ्रॉम वायलेंस ऑल्सो, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो, फ्रॉम ईव टीजिंग ऑल्सो, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, सो मेनी थिंग्स. ओवरऑल एम्पावरमेंट, एटलीस्ट एम्पावरमेंट ठीक है, सेकेंड स्टेज है. ओवरऑल इक्वालिटी, हम इक्वालिटी अटेंड कर ले पहले. हम इक्वालिटी भी नहीं अटेंड कर पाए अभी तक के. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी इन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स, ट्रीटमेंट इज्जत से, आप कैसे बात करें, यू नो, ट्रीटिंग विमेन लाइक अ ह्यूमन बीइंग बेसिकली. जेंडर बाद में, पहले इंसान. दैट चीज़, इंसान को इंसान मानो, उसके बाद उसका जेंडर लाओ, उसके बाद उसका बाकी सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. आई फील दैट इज़ एवरीथिंग इज़ वेरी पर्सनल. योर जेंडर इज़ ऑल्सो पर्सनल दीज डेज. योर जेंडर इज़ ऑल्सो पर्सनल दीज डेज, राइट? इट्स अ वेरी पर्सनल अफेक्ट. इफ यू ट्राई टू टच एनीबॉडीज जेंडर, इट्स अ पर्सनल थिंग. व्हाई आर यू गेटिंग इनटू इट? इट्स लाइक दैट. तो मेरा ऐसा मानना है कि व्हेन यू आर सोशली टॉकिंग अबाउट इट, ट्रीट वुमेन लाइक ह्यूमन बीइंग्स. When you treat her like a human being, everything will be fine. Absolutely. When we are talking about youngsters and we are talking about women, youth politics, मुंबई में इतना कल्चर नहीं है, फिर भी दिल्ली साइड we see, है ना, पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है. मुंबई में why are we not seeing that culture? Are we working towards it or we are not really keen on it? I'm sure, yeah. दिल्ली में there is JNU है, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, काफ़ी एक्टिव है उनका. कॉलेजेस को यहाँ पे महाराष्ट्र में कॉलेजेस को ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा ना. कॉलेजेस विल हैव टू स्टेप इन. जब जैसे वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, वो एक्टिवली फिर वो इलेक्शंस में जो जीतते हैं वो लोग नेशनल मुद्दों पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं, फिर गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, फिर पॉलिटिक्स में आते हैं एक्टिवली. सो या मुझे भी एक टाइम पर अरमान था कि मैं JNU की स्टूडेंट बनूं और सारी चीज़ें, बट देन बिना बने भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड. सो यहाँ पे है डेफिनेटली, बट देन कॉलेजेस हियर विल हैव टू स्टेप इन. और उनको डेफिनेटली, बिकॉज कॉलेजेस को डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आप ये वहाँ से स्कूल और कॉलेजेस से स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आगे जाएगी. बट टिस है यहाँ पर, तो टिस करता है. टिस है यहाँ पर जो वो करता है काफ़ी. समटाइम्स आई थिंक मुंबई यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा बहुत होता है, बट टिस में ज़्यादा होता है. कंपैरेटिवली आई थिंक टिस डज मोर. अगेन ड्रग्स, इट्स नॉट अ जेंडर इशू एनी मोर. पहले ऐसा होता था कि लड़के लोग सिर्फ अडिक्टेड है. दीज डेज गर्ल्स आर ऑल्सो अडिक्टेड टू इट. और ये ऐसी चीज़ है ना कि एक बार एडिक्शन लग गया तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वापस हम उनको वो एडिक्शन छुड़वाए या वो छोड़ दे. उस पे व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन ऑन दैट? एनी एडिक्शन, कोई भी आदत बुरी होती है. मतलब बुरी आदतें बुरी होती है ऑफ कोर्स, वरना कोई भी आदत नहीं. सो ऑफ कोर्स ड्रग्स बीइंग वन ऑफ इट. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अनकॉन्शियस कर दे इज़ नॉट राइट फॉर यू, नॉट फॉर राइट फॉर योर हेल्थ, नॉट फॉर योर सराउंडिंग. एज अ सोशल बीइंग आपको रहने के लिए इट्स नॉट गुड ओनली. तो लड़कियों का भी इट्स शॉकिंग. मैंने ये चीज़ खुद देखी है कि वेरी यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इनटू इट. वेरी यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ यहाँ पर, या स्कूल गोइंग किड्स ऑल्सो. बट देन वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम ऑन द डिपार्टमेंट फॉर इट. They are to be blamed for sure. Like government is to be blamed, police is to be blamed, politicians are to be blamed. मतलब ये सब aspects है, but हम ये सब करके अपना shoulder नहीं झाड़ सकते, because घर पर माहौल क्या है. Like if your kid, अगर आपका बच्चा या बच्ची थोड़ा अनयूजुअल बिहेव कर रहे हैं, माँ बाप तो ऐसे होते हैं ना कि अगर आपके साथ कुछ भी चल रहा हो ना, दे अंडरस्टैंड लाइक दिस. सो आप if you find anything unusual in your child, that is your responsibility to be very strict on them. Absolutely. वो किन दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं क्या नहीं. I don't believe in very strict parenting. नहीं, but at least in the growing years, it has to be monitored. I don't believe in a very strict parenting. No, my parents were never extremely strict on me. No, but they monitored every action of mine. Still they monitor. Discipline. Still they monitor मेरे भाई का. My brother is तो married also, but still उसके actions अभी भी monitor किए जाते हैं. What time is he sleeping? He should get up early. He
शुड गो टू वर्क, वी शुड गो टू वर्क, एंड आप बीइंग पेरेंट्स यू डू एवरीथिंग फॉर योर चाइल्ड, आप सब करिए, उनके सारे शौक और नीड्स पूरी करें, बट मेक श्योर दैट वो सोशली खड़े रहने के लायक हैं, बनाइए उनको। उस चीज़ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, घर के माहौल का बहुत बड़ा रोल है। एब्सोल्युटली आई एग्री। काफ़ी बार हम देखते हैं ना वो सोशली हैंडीकैप हो जाते हैं लोग। At times it is money is a factor, at times that is not even the factor, but still बिकॉज एज पेरेंट्स आवर लाइफ इतना बिजी हो गई है और हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, डिजिटल ज़माना आ गया है, सी कि हमारे बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं, प्लीज़ सी टू इट कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट वो अपने अंदर ले रहे हैं, वो देखिए, कौन से दोस्त हैं वो देखिए। डोंट बी अ स्ट्रिक्ट मदर और अ फादर, बट मॉनिटर एक बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी हमने लाइफ में अगर बैलेंस यहाँ से वहाँ कर दिया, everything gets out of place. Today I'm feeling very happy that I'm talking to a woman who's actually working on ground, है ना, ये सारी चीज़ों पे। एक दूसरा टॉपिक है जिस पे मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ, स्टूडेंट से भी मैं डिस्कस करती हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है अभी इन सिटीज़ लाइक मुंबई कि यहाँ पे महिला मंडल है और इस तरह की बहुत सारी NGOs है, संस्था है। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, लोगों के थ्रू आपने देखा होगा दैट फीमेल एट टाइम्स स्टार्ट टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ दीज NGOs, हेल्थ सेंटर्स, एंड केस शायद ख़राब नहीं होता बट वो फीमेल एंगल लाकर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। सो हैव यू एक्सपीरियंस सच केसेस? Yeah, I have experienced such cases, I have seen such cases. मोस्टली आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, या इट्स वेरी कॉमन दीज डेज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही मर्द सुधर चुके हैं और दे आर वेरी काइंड एंड नाइस क्रिएचर, ऐसा भी नहीं है, बट विमेन कार्ड इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। सो आई ऑलवेज से दैट यू नो समटाइम्स विमेन से अरे आप, मैं औरत हूँ और आप औरत का नहीं, आई एम लाइक आई कांट रिस्पेक्ट योर जेंडर, आई हैव टू रिस्पेक्ट योर कैरेक्टर। Absolutely. आप क्या कर रही हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी rather than just your gender. Like I said कि I treat you like human being and that man also like human being only, and if anything befalls I have to stand by anyone जिसके साथ गलत हुआ है, be it you, be it him, Absolutely. anything. So I don't see you as a woman, I see you as a human being. For me you are also a human being, he is also a human being first. किसने, कौन से इंसान ने किसके साथ गलत किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी रादर देन औरत ने गलत की, आदमी ने गलत किया। ट्रू। और बिकॉज लॉज इतने स्ट्रिक्ट है अगेंस्ट यू नो एनीबडी हु इज़ हरासिंग अ वुमन और मोलेस्टेशन केसेस, बहुत सारी चीज़ों पे नॉन बेलेबल वारंट्स निकलते हैं। हाउ डू यू डील इन सच सिचुएशन? देखो, कोई कितना भी घिनौना खेले, सच सामने आता ही है। ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट, नो मैटर इफ समवन इज लाइंग, और सीधा सच अगर झुटला भी दे रहा है कोई, तो सच सामने आता ही है। लॉ इज अबव ऑल। बट ये मोलेस्टेशन और ये थोड़ा सा यू नो फेवर वर्क एंड ऑल दिस हैपेंस, मेन डू सच थिंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई एकदम प्रोफेशनल अगर ऐसा होगा तो कुछ तो प्रूफ लेके ही जाता है इंसान मोलेस्टेशन का या किसी चीज़ का, तो आप मौका क्यों दे रहे हो? आपके ऊपर केस फिट हो, उसका मौका क्यों दे रहे हो? सो दोनों तरफ से ताली बजती है। ट्रू, आई एग्री। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सारे ऐसे भी केसेस हम सुनते हैं डे टू डे लाइफ में जहाँ कम उम्र में दे गेट इनटू रिलेशनशिप्स, यू नो, नया कॉलेज ज्वाइन किया है, एडोलेसेंस है, पीपल गेट इनटू रिलेशनशिप्स, एंड अगेन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। ट्रू, लास्ट 15-20 डेज में मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आए। हाँ, where young girls are into relationships, and then when they want to cut off ties, the guy is blackmailing. पहले तो मुझे शौक होता है कि क्या परवरिश होगी लड़के की कि वो इतना नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। बाय दिस पॉडकास्ट आई वांट टू से इट आउट लाउड कि लड़कियों, अपनी आंखें खुली रखो, यू नो, डोंट ट्रस्ट एनी थिंग दैट यू सी ब्लाइंडली, एनी वन दैट यू नो, कोई आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है और या डोंट गेट ट्रैप्ड बेसिकली। और ये जो आपके प्राइम एजेस होते हैं ना, हम उसी प्राइम एजेस में ट्रैप हो जाते हैं। 16 to 22 ईयर्स के बीच में, 15 से 22 साल के बीच में हम ट्रैप हो जाते हैं। एक बार आपने वो प्राइम एज
आपकी गुजार ली, तो उसके बाद यू आर मेच्योर इनफ टू टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ. Absolutely. तो आप ये सब चीज़ों में ये एज में पढ़िए ही मत. आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर स्टडीज़, बिकॉज ये एज में यू आर मोस्टली विथ योर पेरेंट्स. अगर आपके पेरेंट्स आपको आपके करियर, आपकी पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो देन डोंट वेस्ट योर टाइम समवेयर एल्स. यू नो, डोंट वेस्ट योर टाइम समवेयर एल्स. पुट इट प्रॉपरली इन योर स्टडीज, इन योर करियर, एंड देन एक बार आप कुछ ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, व्हेन यू आर अ रिलीजियस पर्सन, आई एम श्योर दैट यू विल मेक गुड डिसीजंस इन योर लाइफ व्हेन चूजिंग अ पार्टनर. शादी और पार्टनर चूज करने की बात आएंगी तो यू विल बी एट पीस व्हाइल चूजिंग. True, true. You are a woman, right? How difficult or easy is it for you in this particular area? Have you faced gender bias? Initially, yes. Initially, even if then I realized कि even if you come from a family who's already into it, उसके बाद भी अगर I was facing it somewhere. So think about other women जिनका कोई इतना strong base ना हो, support system ना हो, वो उनको जब करना रहता होगा तो उनको कितना biasness feel करना पड़ता होगा. Because initially जो भी मैं field work करती थी, I heard people commenting कि अरे लड़की से लड़की क्यों कर रही है, तो दैट इज़ जेंडर बायसनेस. शानू अपनी बेटी से ट्रैफिक करवा रहा है, अभी लड़कियाँ ट्रैफिक मैनेज करेंगी, सो लाइक दैट. सो इवन इफ आपकी राजा की बेटी क्यों ना हो, कुछ भी हो, प्रजा आपको कुछ भी बोल सकती है कभी भी. True. I agree. Recently, बहुत सारी न्यूज़ में day in day out, everyone was tensed. Is there going to be a war? And again, people were relying on media. Media authenticity is again a very big question, because we were seeing major news channels, they were reporting, people were looking up to them for news, and they also excused themselves for a few wrong reportings. ये जो हमारा entire situation था, उसमें बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी हकीकतें, पहलगाम का, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, इंस्टेड ऑफ द ऑथेंटिक मीडिया सोर्सेज दैट वी हैव. इंटरनेशनल सोर्सेज में काफ़ी ऐसे है जो दिखाया है, बहुत सारे AI जनरेटेड इमेजेस है, पीपल आर यूजिंग दैट टू क्रिएट हेट. हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू मॉनिटर द काइंड ऑफ न्यूज़ that we are portraying in the media, because everyone is watching that. I always convey this message to the media कि आप लोग, you are that mirror, जो आर पार दिखा सकता है लोगों को. बिकॉज हम अपनी डेली लाइफ में तो घर में बैठ के टीवी देखते हैं, बट देन जिस तरीके का कश्मीर को दिखाया गया था अभी पहलगाम अटैक के टाइम पे, एंड आई हैव दिस लॉट ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कश्मीर बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशन. सो मुझे तो बहुत पर्सनली तकलीफ़ हो रही थी वहाँ पर, बिकॉज आई नो द पीपल ऑफ कश्मीर, दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत वेरी काइंड, बहुत तहजीबदार और बहुत मोहब्बती लोग हैं वहाँ पे. तो जिस तरीके की न्यूज़ बताई जा रही थी, नाम मतलब मीडिया आजकल हमको ऑथेंटिक न्यूज़ मीडिया में जल्दी देखने को ही नहीं मिलती है. वो लोग जो ब्लंडर, जो मिर्च मसाला, बिकॉज पीपल ऑल्सो लाइक टू वो हैव मिर्च मसाला, उनको भी देखना पसंद है. दे ऑल्सो लाइक टू सी हेट. आई फील अभी हमारे अंदर ही इतना नफ़रत भर गई है पिछले कुछ सालों में कि हमको नफ़रत ही एब्जॉर्ब करना अच्छा लगने लगा है थ्रू TV और न्यूज़ चैनल्स. तो न्यूज़ चैनल भी वही दे रही है. जो कपल जिनके हस्बैंड की डेथ हुई, शी वाज मैरिड, न्यूली मैरिड, जिनके हस्बैंड की डेथ हुई, वो दोनों का कुछ पुराना वीडियो, apparently that was not them, जो वीडियो वो लोग न्यूज़ में चला रहे थे, that Exactly. that Yes, they were other couple, Yeah. and they were alive, And they it made a was video. they came out and they made a video कि this is so not right. हम दोनों जिंदा है, हमारी फैमिली फ़ोन कर करके परेशान कर दी हमको कि आपको क्या हो गया, बिकॉज वो वीडियो में मैं और मेरा हस्बैंड है, जिनकी डेथ हुई, वो और उनकी वाइफ कोई और है, बस कपड़े थोड़े से सिमिलर दिख रहे हैं. तो मीडिया इतना बड़ा गूफअप कैसे कर सकती है, इतना बड़ा बिना कोई ढंग की सोर्स से आप चीज़ें डालिए ना, ऐसे कैसे आप लोगों को बेवकूफ़, जस्ट टू क्रिएट इमोशनल एस्पेक्ट इन पीपल, नथिंग एल्स. दैट वाज नॉट इवन नीडेड व्हाट हैपेंड बिफोर दैट इंसिडेंट. वो लोगों को देख के क्या करना है कि मतलब वो लोग का वीडियो, दे आर डांसिंग एंड ऑल, वो क्यों देखना है किसी को, राइट? पीपल शुड नो द फैक्ट्स ओनली.
just to create that emotional aspect in people, bring just to give drama. more drama to people, वो चीज़ बताई गई, वो भी गलत ड्रामा दे भी रहे हो तो गलत ड्रामा दे रहे हो, एंड दैट वाज सो रॉन्ग. वो बेचारे कपल, वो लोग फ्रीक आउट कर रहे थे कि ऐसी न्यूज़ चलाई. तो बट थैंक्स टू अभी ये जो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खुद का व्लॉग और एनीथिंग, इंस्टाग्राम एक मीडियम है जहाँ पर भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी चलाई जाती है, बट राइट इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत सारे लोग हैं. मीडिया कुछ ही चैनल्स हैं, उसमें से भी 90% गलत ही कुछ बता रहे होते हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, बहुत बड़ा स्पेस है. 10 लोग गलत बताएंगे तो 90 लोग सही बताने के लिए है वहाँ पर. सो जिस तरीके से इंस्टाग्राम के थ्रू कश्मीर का फेस बाहर आया, पूरी जो एक स्ट्रैटेजी मुझे ऐसा लगता है बनाई गई थी टू डिफेम कश्मीर, वो फेल हो गई. और बल्कि इट केम आउट इन अ वेरी वंडरफुल सपोर्टिव वे. और जो जितने टूरिस्ट थे वहाँ पे, द वे दे स्टूड फॉर कश्मीर, बिकॉज वो लोग ने विटनेस किया ना उनकी हॉस्पिटैलिटी और हार्ड टाइम्स में कैसे कश्मीरी उनके लिए खड़े रहे. जितने भी टूरिस्ट थे इंडिया के, दे ऑल स्टूड बाय कश्मीरीज. इतना होने के बाद भी वो लोग कश्मीर के साथ खड़े रहे वहीं पर. सो ये हमारे देश की खासियत है, वी स्टैंड फॉर ईच अदर, एंड दैट इज़ वॉट इंडिया इज़. And we also saw the videos of how the locals were helping Exactly, people who the were locals, suffering. Kashmiris, that's what I'm saying. Yeah. यही हमारी खासियत है. हम कश्मीरी हो, हम महाराष्ट्रन हो, हम चाहे साउथ से हो, यही हमारी, हम इंसानियत पे मानने वाले लोग हैं. इंडिया मीन्स हम इंसानियत पे मानने वाले लोग हैं. एक दूसरे को धर्म, जात, कास्ट पे, जेंडर पे हेल्प करने वाले लोग नहीं हैं. बस दिल से दिल का रिश्ता है. Absolutely, absolutely. During the last Ramzan, we saw you on the roads. ना ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेंस लोगों का बेटर करते हुए. आई एम श्योर दिस ईयर द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग मस्ट बी मच बेटर. रमज़ान में स्पेसिफिकली बिकॉज रोड्स पे सारे शॉप्स लगते हैं और लोगों के लिए तकलीफ हो जाती है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन द रोड? We've been doing this since 4 years. This was Okay. our 5th year. Okay. Yeah, and my father though is doing it since very long. Yeah. अच्छा. So initially तो people, when a girl is managing traffic, it's really difficult for guys to not take a U-turn. बिकॉज वो ईगो हर्ट होता था इनिशियली शुरू में. अच्छा भी लड़की बताएगी कि मैं रॉन्ग ना लूँ, मैं ट्रिपल ना बिठाऊँ, मैं यहाँ पार्क ना करूँ. बट देन इवेंचुअली व्हेन दे सॉ नो दैट द रियल एफर्ट्स आर देयर, ट्रू एफर्ट्स आर देयर, शी इज़ जेन्युइनली वर्किंग हार्ड. और फिर और सारी उनकी safety के या नो एंड शहर के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए, शहर में लोग आए, अच्छे से आए, अच्छे से जाए, शहर का नाम हो. बिकॉज रमज़ान इज़ अ फेस्टिवल वेयर पीपल गो टू मोहम्मद अली रोड टू एन्जॉय वाइब्स. तो मुमरा में भी अब लोग उसी तरीके से आने लगे. आई विल नॉट से दैट मुमरा इज़ इक्विवेलेंट टू मोहम्मद अली, बट दोनों अपनी अपनी जगह पर अब बहुत अच्छा कर रहे हैं. मुमरा इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड इन रमज़ान, चाहे शॉपिंग हो, चाहे फूड स्टॉल्स हो एंड एवरीथिंग. सो ट्रैफिक होगा अगर और सारी चीज़ें होगी तो लोग नहीं आएंगे ना. दे विल नॉट लाइक कमिंग टू मुमरा. फिर उससे सारी चीज़ें डैमेज होगी. जो इकोनॉमी है वो रमज़ान में फ्लरिश और अच्छे से कर सकती है, वो नीचे आ जाएगी. सो बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसीलिए हम ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं. ट्रैफिक इज़ देयर ऑलवेज True. इन होल ऑफ बॉम्बे, नॉट इन जस्ट मुमरा, इन होल ऑफ बॉम्बे ट्रैफिक इज़ देयर. बट या मुमरा में भी बहुत ट्रैफिक है, एवरी डे पे होता है. बट वो कैसे होता है, 9, 9:30, 10 बजे तक के होता है, फिर वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है. बट ड्यूरिंग रमज़ान इट्स देयर टिल 2 a.m. in the night, 3 a.m. in the night. So that's when we step in, because रमज़ान है ऑलरेडी, लोगों को बाहर से भी आना है, शहर की जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है नहीं. दिस इज़ नॉट आवर जॉब, ये हमारे फाउंडेशन का काम नहीं है. दिस इज़ डिपार्टमेंटल वर्क, दिस इज़ डिपार्टमेंट्स वर्क, दिस इज़ नॉट आवर वर्क. बट वी स्टेप इन व्हेन डिपार्टमेंट सेज दैट वी डोंट हैव अ मैन पावर. हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं है, महापालिका बंद है. सो उनको हेल्प करने के लिए हम अपने वॉलंटियर्स और खुद, क्योंकि हमारा भी शहर है तो हमारी भी जिम्मेदारी है. सो यू नो कि हमारे शहर में हम सिर्फ डिपार्टमेंट पे नहीं डिपेंडेंट हो सकते. वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ इट, वी ऑल्सो हैव टू बी डिसिप्लिन, वी ऑल्सो शुडंट spit anywhere and everywhere and park cars here and there, because if you want your city, your place to develop, you need to be disciplined too Absolutely. for it, right? Yeah.
I know your love for Mumra. I will stand by Mumra and I will always stand by defending it, no matter what. Mumra has developed a lot, in the last few years. What is the roadmap for Mumra? Next 5 years, next 10 years, how are we seeing the new dynamics of Mumra? लास्ट 15 ईयर्स में तो मुमरा काफ़ी हद तक के अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो गया है. पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, 17 घंटा लाइट नहीं रहती थी. अभी लाइट रहती है. रोड्स कच्चे थे, इधर इधर तक के पानी भरता था. अब रोड्स कंक्रीट हो गए, आरसीसी हो गए हैं. पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर. लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, हमारे एमएलए का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनकी टीम जिसमें मेरे वालिद है और भी दूसरे लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है. सो सारे एवरी कार्ड अपनी अपनी जगह पर सही काम किए, तब जाके कुछ नहीं से आज मुमरा बहुत कुछ बन गया है. और अब आगे की जिम्मेदारी हमारी है. आई विल इंशाल्लाह ट्राई माई बेस्ट कि न्यू मुमरा बन रहा है पूरा. MM वैली और मित्तल की तरफ आप जाएंगे, सो देयर इज़ दिस न्यू मुमरा इवॉल्विंग, इरप्टिंग, वेयर आप जाएंगे वो एरियाज़ में तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुमरा में हैं. सी, एक शहर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बांद्रा का भी पार्ट है, right? So Bandra have this Carter Road also, and then Bandra East is also there. So yeah, so हर शहर का अपना साइड होता है ना? We cannot deny it, but our शहर, our Mumra is developing, that's for sure. Yeah, inshallah. ब्यूरोक्रेसी में delays इतने होते हैं because of various reasons. It's like तारीख पे तारीख. How frustrating or how annoying it gets. A lot of times there are things which could have been done easily, but because of date issues or because of the lethargy, the work is not done. How do you deal with such challenges? सिस्टम को सिस्टम ही चेंज कर सकता है. Nobody else can do it for them. चाहे टॉप टू बॉटम करप्शन होगा, सारी चीज़ें होगी, तो फिर ऑफ कोर्स देयर विल बी डिलेज और सारी चीज़ें. आप देखिए केसेस इतने हैं, कोर्ट्स कम हैं, इट्स अ होल साइकिल. तो ये ऊपर से सही होना ज़रूरी है. जब ऊपर से सही होगा तब जाके नीचे सारी चीज़ें या इट विल स्टार्ट फ्लोइंग. या again, you do so much of social work, you do a lot of activities for empowering people for people to get rights. How do you manage me time? No, मेरे me time में I just like to be home, वेले, not doing anything. Just be by yourself. Just be like sleep. Yeah, because I'm sure you must be sleep deprived all the time. All the time. I'm sleep deprived all the time. मतलब my life is sleep deprived, I feel. Yeah, I can be the ambassador of sleep, being sleep deprived. But me time के लिए ऐसा कुछ there's nothing like that because my friends are also working. So कोई मेरे आसपास, मेरी surrounding वैली है ही नहीं to have me time और सारी चीज़ें. अब me time में you go to your friends and everything. My friends are also working. Weekends पे वो free होता है, but weekends मेरा बहुत busy होता है. So मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं दे आर यूजुअली वर्किंग. उनका वीकेंड्स पे छुट्टी होती है. वीकेंड्स आई एम मोस्टली बिजी लाइक टुडे संडे, बट देन आई हैव लाइंड अप things for the whole day till night. So yeah, ऐसा तो हो नहीं पाता है, but yeah, still I make out time. I go for this Yulu cycling in Navi Mumbai with my best friend. And मेरी एक दोस्त भी है, so she is also long distance. तो कभी आती है तो we spend time. उतना ही. अभी फ़िलहाल तो full focus. There is no me time. अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है me time की. Okay. Do you think spirituality is important? Extremely. I'll go mad, crazy. You see what kind of people I have around. हर रोज़ when I wake up I see ऐसे भी लोग होते हैं. Okay, people are like that also. I mean, ये भिन्न भिन्न प्रकार की creatures I see. I can't agree more. भिन्न भिन्न प्रकार के creatures I see. Unbelievable. So आपको अगर होश में रहना है, आपको sane रहना है, तो बीइंग रिलीजियस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, अदरवाइज यू विल गो इनसेन, क्रेजी. I'll say a few words and quickly, I mean it's just for fun and you have to tell me what comes to your mind. Empowerment. Women. Empowerment. Confidence. मर्जिया शानू पठान.
Lovely. I love that. Support system. Definitely your parents. My parents, I mean, like, support system. Love. Friends. Success. Legacy. For me, success is creating a legacy. Wow. Compassion. Politics. Last, guidance. Again, I'll say my parents. Wow, lovely. You are definitely very fond of parents, and I'm sure that there are a lot of people who are not very fortunate to have support from their parents due to whatever reasons. But receiving the supports from the parents in everything that you do, डांट प्यार तो होता ही है. That is their way of showing love. But to receive the support in the formation years is very important. I'm sure you're lucky in that area. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah has been merciful. Alhamdulillah. Lastly, any message that you would want to give to the youth that is watching you right now, especially the girls? See, हर रोज़ कुछ नई चीज़ हमारे सामने आ रही है. आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स ओवरवेलमिंग. वी इतनी तेज़ी से दुनिया बढ़ रही है दैट वी फील दैट वी आर लैकिंग बिहाइंड. बट जस्ट बिकॉज वी फील दैट वी आर लैकिंग बिहाइंड, वो दुनिया की तेज़ी में, वो दुनिया की चमक में, डोंट गेट लॉस्ट. यू नो, वी आर बीइंग लॉस्ट. हम इतने लॉस्ट हो जा रहे हैं आजकल की दुनिया में कि वी आर फॉरगेटिंग आवर रूट्स. वी आर फॉरगेटिंग कि ये सारी चीज़ें हमको टेम्पररी हैप्पी कर सकती है, बट एटर्नली हैप्पी रहने के लिए वी नीड टू स्टिक टू आवर रूट्स. सो ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज़ वॉचिंग, स्टिक टू योर यू नो स्पिरिचुअलिटी. जिस पे भी आप मानते हैं, देर इज़ अ पावर, you know that. So above us all, so stick to being spiritual. Be close to your parents, very close to your family and parents, and work hard. And nothing can come your way. एक age के बाद you will realize that whatever happens for good. Whatever happens for good. You make mistakes, you learn from it, get up, finish. जहाँ पे आप, and ever, never ever choose disrespect. कभी भी आपको ज़िंदगी में ऐसा महसूस हो कि आप कोई भी टेबल पे बैठे हैं और वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वॉक ऑफ. जस्ट वॉक ऑफ. नो मैटर वेयर यू आर सिटिंग एंड सामने क्या चीज़ रखी है, आपको ऐसा लगे कि यू नो दिस थिंग इज़ कमिंग ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट नाउ, सो जस्ट वॉक ऑफ. स्पेशली गर्ल्स, डोंट टॉलरेट एनी थिंग in the name of yeah, so please walk off. Lovely, lovely. Thank you so much. Thank you so much for coming. It was really wonderful talking to you, and I'm sure the audience will also agree with me. That was Marzia Shanu Patan, guys. Raw and unfiltered, filled with life and energy. Thank you so much. Thank you.